I just add a servlet. That servlet is addLink servlet. The one example I have given, that how to pass the data in a form, and you have to retrieve that data in a servlet. So now what happened, in a addLink form that already I have created. So in this form you have to give a information. It is processed through the controller. If your data is correct, then it is moving to the success phase, or else it is moving to the error phase. तो मुझे addLink form टा बनैली, तो addLink form रे जहाँ भी information देबी से हमर जो कंट्रोलर टा मु बनैची से कंट्रोलर को मोर information टा जीवो सेटी प्रोसेस हबो तापर मते आउटपुट शो करिवो. So now if you see here in this addLink form, we define here form action equals to addLink, means you have to give a information in addLink. Year input type equals to text, name equals to year. Then we give a season. In season there is a different option: spring, summer, fall, winter. So all the information are going and evaluated in the controller page. So that controller page is called as the addLink.java. This one. So this is a addLink.java. Now where you have to process? I have to process the information into do post method. Okay, so here we have to write a code. The first work is you have to retrieve the information. Okay, so we have to retrieve the information from the form. The basic work is you have to first remove it. Then I have to write a code to retrieve the form data. तो फॉर्म में जो डेटा हम पास करेंगे उस फॉर्म का डेटा को हम रिट्राइव करेंगे. तो कैसे रिट्राइव होगा?
Okay, so I have to write a code to retrieve the form parameter. First, I have to define two class object. See that, this one. First, I define the list class object, new linked list. Okay, so as you don't know how many error will come to your program, आपका प्रोग्राम में कितना एरर आएगा ये आपको पता नहीं है. तो फॉर डायनामिक getting the memory, we're using here linked list. Okay, so linked list is used to getting the number of error from a program. मतलब आपका प्रोग्राम में कितना एरर आएगा इन एडवांस आपको पता नहीं होगा. तो इसके वजह से हम यहाँ पर एक लिस्ट डिफाइन किए जो हम कोर जावा में पढ़े थे कलेक्शन क्लासेस में. लिस्ट, गुड मॉर्निंग सर. लिस्ट एरर मैसेज न्यू लिंक. Then we pass here a request.set attribute error message and error message. Just in the before one class I have told you एक सर्वलेट दूसरा सर्वलेट में डेटा ट्रांसफर नहीं करता है. तो वो डेटा कैसे ट्रांसफर करेगा? बाय यूजिंग दिस request.set attribute. रिक्वेस्ट क्या है? Request is the object of HTTP servlet request class. See there, HTTP servlet request then request object. ए नाम आप जो भी दोगे यहां पर वही नाम लिखना पड़ेगा. request.set attribute. तो जो भी एरर मैसेज मतलब जो भी एरर आएगा तो ये लिंक लिस्ट में स्टोर हो जाएगा. वहां से हम इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे ना रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देंगे. तो क्या होगा, एक सर्वलेट से आप दूसरा सर्वलेट को डेटा ट्रांसफर कर सकते हो. एवरी सर्वलेट इज इंडिपेंडेंट. कोई सर्वलेट दूसरा सर्वलेट को डेटा देना नहीं चाहता है. बट फॉर द एप्लीकेशन पर्पजेस इफ यू वांट टू शेयर योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सर्वलेट टू द अनदर सर्वलेट, in that cases we're using request.set attribute method. तो request.set attribute error message then error message. error message क्या है? ये लिंक लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर स्टोर हुआ और ये जो है यहाँ पर जो स्टोर हुआ है एरर मैसेज ये हो गया कांस्टेंट. जब मैं लिंक लिस्ट यहाँ पर ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पर एक एरर शो करेगा दैट लिंक लिस्ट इज नॉट फाउंड बिकॉज इसका पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ है. तो ये पैकेज कैसे इंपोर्ट होगा? ये जो बल्ब सिंबल आ रहा है उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सजेशन दिखाई दे देगा. तो यहाँ पर मैंने ऐड इंपोर्ट फॉर जावा यूटिल डॉट लिंक लिस्ट के लिए एक पैकेज ऐड किया. तो फिर से ये एरर नहीं जाएगा, वो लिस्ट के लिए मांगेगा. तो लिस्ट के लिए अगेन व्हेन यू क्लिक import java.util.star import यहां पर मैंने लिस्ट क्लास के लिए ऐड कर दिया. नाउ आई हैव टू डिफाइन हियर ट्राई एंड कैच ब्लॉक.
फर्स्ट आई डिफाइन हियर ट्राई, उसके बाद मैं यहाँ पर कैच ब्लॉक ये डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, तो ट्राई ब्लॉक में मैं क्या डालूंगा इधर, जी वो ओके। नाउ फॉर रिट्राइव द रिकॉर्ड, यहाँ पर मैंने फॉर्म डिफाइन किया था आर्डलिक फॉर्म में, तो यहाँ से मैं ये जो सारा डेटा है फॉर्म में, लाइक ईयर में ईयर, सीजन और टाइटल, ये सारा इंफॉर्मेशन को मैं सर्वलेट में रिट्राइव करूंगा। तो सर्वलेट में रिट्राइव करने के लिए कौन सा कोडिंग हम यूज करेंगे, तो फर्स्ट आई डिफाइन दिस 3 पैरामीटर, ये तीनों चीज मैं डिफाइन करूंगा। तो 3 वेरिएबल आई हैव डिफाइंड, स्ट्रिंग ईयर str, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ईयर। यहाँ पर ट्रिम मेथड यूज किया जाता है क्योंकि आप जब टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा आप पास करोगे वहां पर आपका वाइट स्पेस ले जाएगा, तो ट्रिम मेथड इज यूज टू रिमूव द वाइट स्पेस। एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक बड़ा कैरेक्टर लेता है, ट्रिम मेथड यूज करने से सिर्फ जो डेटा आप पास कर रहे हो वही डेटा लेगा और जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर? सो दैट वी आर यूजिंग ट्री मेथड। सीजन में भी ट्री मेथड यूज किया। ये जो ईयर, सीजन और टाइटल, ये क्या है, ये नाम कहां से आया? दिस नेम वाज गिवन वेयर इन आर्डलिक फॉर्म। अगर हम आर्डलिक फॉर्म में जाएंगे, देखो यहां पर इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम हो गया ईयर, सीजन का सीजन है, टाइटल का टाइटल है। ये तीनों इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर रिट्राइव किया, ईयर, सीजन, टाइटल। Next, after I am getting all the records and store in a variable year str, string season and string title, then I go for a conversion. Till now, is there any doubt? Ankita, Sagar? No, sir. Do? No, sir. Malini, हम दियो बुझियला? मैं हाँ तो बोलो, हाँ पुड़िया खा रहे। Okay. Now I go for a conversion. तो अभी मैंने और एक चीज यहां पर डाला, कंट्रोलर में सारा चीज वेरीफाई होता है, तो पहला वेरिफिकेशन मैंने यहां पर शुरू किया। पहले मैंने क्या किया, int ईयर, एक वेरिएबल डिफाइन किया ईयर, उसके अंदर मैंने -1 पास कर दिया। तो ट्राई ईयर इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पास int ईयर str। आप जो डेटा दे रहे हो फॉर्म में वो आकर ईयर str में स्टोर हुआ। जो ईयर यहाँ पर स्टोर होता है, इट इज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट। नाउ आई कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग टू इंटीजर। सो फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर डॉट पास int ईयर str इज यूज्ड। तो ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर जाकर ईयर में स्टोर हुआ। इसको मैंने ट्राई में डाला, आज बिकॉज इफ देर इज एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द conversion,
it shows an exception. That exception is number format exception. It is just initializing the value. When you are using minus, then minus year equals to -1. If you are not passing any value, then automatically -1 is there. Then it is saying year must not be a positive integer, must be a positive integer. If you pass 0, then it is correct, no problem on that. Okay. तो यहाँ पर मैंने ईयर का कन्वर्सन हो गया. अगर आप जो ईयर देते हो ईयर में स्टोर हो गया. अगर आपका ईयर माइनस फॉर्मेट में है तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक एक्सेप्शन शो करेगा, दिखाएगा ईयर मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर. नेक्स्ट आई मूव टू वेरीफाई द फॉर्म पैरामीटर. मैंने फॉर्म में डाटा दे दिया. अब अभी फॉर्म में मैं फॉर्म का डाटा को मैं चेक करूंगा. देखो यहाँ पर अगर मेरा एरर आता है वो एरर कहां पर ऐड होगा. जो पहले देखो लीस्ट एरर मैसेज एक डिफाइन किया था, बिकॉज ऑफ इट इज टेकन द मल्टीपल एरर. इस प्रोग्राम में कितना एरर आएगा आपको पता नहीं है, तो इसलिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर लिंक लिस्ट डिफाइन किया. तो जो भी एरर आएगा वो एक ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाएगा. तो वहां पर उसको इन्वॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट ऐड मेथड यहां पर यूज किया गया. सो नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस वन. यहां पर जो फॉर्म का डाटा आप दे रहे हो यहां पर वेरीफाई होगा. अगर आपका ईयर नॉट इक्वल्स टू -1, if your year not equals to -1 and if your year is less than 200, sorry 2000, okay, it is one condition. Then here these both are another condition. If your year is less than 2000 or year is greater than 2010, यहां पर एक एरर जुड़ जाएगा जो दिखाएगा ईयर फील्ड मस्ट बी विद इन द 2000 टू 2010. अगर आप कोई भी सीजन चूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट अननोन यहां पर रह जाएगा, क्योंकि यहां पर फॉर्म फील्ड में क्या है, ऑप्शन वैल्यू. पहला ऑप्शन जो आपको दिखाएगा ऊपर है अननोन ही होगा. अगर आपका फॉर्म ऑप्शन का वैल्यू अननोन है तो आपको एरर मैसेज शो करेगा दैट प्लीज सिलेक्ट ए लीस्ट सीजन. और एक टाइटल है टाइटल डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0. अगर आपका टाइटल में कुछ इंफॉर्मेशन पास नहीं करते हो देन यहां पर भी आपको एरर मैसेज शो करेगा प्लीज एंटर ए टाइटल ऑफ फॉर ए लीड. So these are all error messages added if you are passing any wrong thing here. Now one by one I have told you. फिर से हम जाएंगे कैसे होगा. In any step if you found any kind of doubt then ask me.
अगर आपका जो एरर ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी नहीं है, मीन्स इफ योर पेज इज कंटेन द एरर, जो ऑब्जेक्ट में हम एरर ऐड कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट एम्प्टी, देन ये सर्वलेट आपको कहां पर ले जाएगा? ये आपको ले जाएगा एरर पेज में। ओके, अगर आपका पेज में एरर है तो ये एक दूसरा पेज में आपको ले जाएगा जो होता है एरर पेज। यस, तो रिक्वेस्ट डॉट डिस्पैचर एरर, तो मैं यहां पर सिर्फ एक एरर पेज डाल देता हूं। इट इज व्हाट? इट इज ए व्यू पेज। ओके, रिक्वेस्ट डिस्पैचर को ऐड करने के लिए यहां पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का काम क्या है? एक सर्वलेट को दूसरे सर्वलेट के साथ कनेक्टेड करने के लिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज होता है। दैट ऑलरेडी वी नो इट, मैं थ्योरी में बता चुका हूं इसको। तो यहां पर रिक्वेस्ट डिस्पैचर मैंने यहां पर ऐड कर दिया। Now if you found the error, then where it is going? It is going to the view page. Now for creating a view page, right click on the source package, new Java package, मैंने यहां पर view डाल दिया। इज वेरी इंपॉर्टेंट। MVC पार्ट, MVC में मैंने व्यू में आ गया। व्यू में मैं क्या डालूंगा? एक सर्वलेट ऐड करूंगा। तो राइट क्लिक, न्यू, आई हैव डिफाइन योर जावा सर्वलेट। सर्वलेट का नाम दे दिया इधर एरर पेज। नेक्स्ट, add information to deployment descriptor। अगर एरर पेज में आएगा, एरर पेज का इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा। तो एरर पेज कैसे डिजाइन होगा मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये हो गया हमारा एरर पेज सर्वलेट। इसको डिजाइन करने के लिए लुक एट केयरफुली, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी क्वेश्चन। एरर पेज में हम अभी प्रोग्राम लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम इन द एरर पेज, तो यहां पर जो डू गेट और डू पोस्ट मेथड है, डू गेट और डू पोस्ट मेथड, तो इसमें से एक कोडिंग है प्रोसेस रिक्वेस्ट। यहां पर प्रोसेस रिक्वेस्ट के जगह पर मैं और एक मेथड डालूंगा।
प्रोसेस रिक्वेस्ट ऑलरेडी ऊपर है, जेनरेट व्यू, डू गेट में ए मेथड डिफाइन हुआ, अगर कोई दूसरा मेथड आप डिफाइन करते हो तो डू गेट डू पोस्ट मेथड में डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं कर रहा हूं वही स्टेप आपको फॉलो करना है। देखो, जब आप जनरेट व्यू लिखोगे यहां पर एक एरर शो करेगा, it's showing you the error that it cannot find the symbol. तो आप जब क्लिक करोगे यहां पर दिखाएगा क्रिएट ए मेथड फॉर जनरेट व्यू। तो यहां पर एक, जब मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पर एक मेथड क्रिएट हो जाएगा। देखो जनरेट व्यू का मेथड क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर जो थ्रोज लिखा है उसको हटाना है। और ये बाहर, ये जो जनरेट व्यू के बाहर यहां पर लिखना है थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। तो मेरा एरर अभी है, तो एरर को मुझे डिस्प्ले करना है। तो एरर को डिस्प्ले करने के लिए पहले मैं 3 चीज इधर डिफाइन करता हूं फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया स्ट्रिंग पेज टाइटल। स्ट्रिंग पेज टाइटल, it's showing you Duke Soccer League error page. It is just a variable and I am storing a value. तो देखो यहां पर मैंने क्या यूज किया, लिस्ट एरर मैसेज रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट एरर मैसेज। तो आप कंट्रोलर में अगर आप चेक करोगे, कंट्रोलर में मैंने क्या डिफाइन किया, पहले जो प्रोग्राम मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, जो भी एरर आएगा तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, request dot set attribute error message and this one। एरर मैसेज में आया, एरर मैसेज कांस्टेंट में स्टोर हुआ। तो इसको मैंने रिट्राइव कहां पर किया, ये सेट एट्रीब्यूट हुआ। अभी मैं यहां पर गेट एट्रीब्यूट करूंगा। गेट एट्रीब्यूट एरर मैसेज। तो यहां पर सेट एट्रीब्यूट हुआ,
तो वही एरर को रिट्राइव करके ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए लीस्ट एरर मैसेज रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट एरर मैसेज, तो यहां से हटाकर एरर मैसेज ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ। उसके बाद जो एरर आया हम इसको डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले करने के लिए यहां पर प्रिंट राइटर क्लास यूज किया गया। प्रिंट राइटर आउट रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, तो आपको रेस्पॉन्स यहां पर प्रिंट करेगा। तो रेस्पॉन्स को प्रिंट करने के लिए मैं एक HTML फॉर्म जनरेट किया। This one, print writer out response dot get writer out dot println HTML head पेज टाइटल जस्ट मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। ड्यूक सॉकर लीग एरर पेज आपको दिखाएगा। देन इट इज अ टाइम टू रिट्राइव द एरर्स दैट इज स्टोर इन एरर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर है, उसको आप कैसे रिट्राइव करोगे? बाय यूजिंग ऑफ इटरेटर मेथड। So when you are using iterator method, it shows an error. So you have to import the iterator method, add import for java.util.iterator. Iterator items object.iterator. आपका इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर है? एरर मैसेज में स्टोर है। तो वहां से रिट्राइव करके आइटम्स ऑब्जेक्ट में मेरा वैल्यू स्टोर होगा यहां पर। नाउ इटरेटर में स्टोर करने से क्या होगा? तो योर इटरेटर मेथड इज रीच टू द एवरी ऑब्जेक्ट के पास वो रीच करेगा। तो व्हाइल आइटम्स डॉट हैज नेक्स्ट, जब तक ऑब्जेक्ट में आपका लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। हैज नेक्स्ट मींस इफ योर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द नेक्स्ट, तो रिट्राइव वन आइटम डॉट नेक्स्ट। ऑब्जेक्ट से जो डेटा आ रहा है, it is not having any format, so that we convert it into a string. तो string items dot next, तो इसको लेकर मैसेज वेरिएबल में मेरा स्टोर किया। तो जो भी एरर है वो सब लिस्ट वाइज HTML में लिस्ट के वाइज यहां पर शो करेगा। नाउ आई just run the file of error page, then I move to the success page, another part. So your tax is now heavy. Ensure that by today this practical is over, and if you face any kind of difficulty, you just give me a call. Okay, so all practicals are related to each other. So it is a error page I have defined, and I move to the success page. Then I go for another part also.
again. सर टॉमकैट प्रोसेस कौन? Tomcat is a server. आज आम ये जो एप्लिकेशन टा बनाऊचे इट इज अ वेबसाइट एप्लिकेशन फॉर होस्टिंग ए वेबसाइट एप्लिकेशन यू रिक्वायर ए सर्वर. तो आम पाखे सर्वर नहीं तो लोकली हमको गोटे सर्वर दरकार. एटा लोकल मशीन यूज करूचे तो से सर्वरटा पई हम यूज करछे टॉमकैट सर्वर. एठी हमर एप्लिकेशन टा होस्टिंग होउछ. तो ये सर्वर जे पर्दा स्टार्ट न होइछे हम प्रोग्राम चलिबो. बुझियो? आई कैन. See there, I just only run this one. When I click here, add link, see there, it moves to me the error page. Suppose if I pass here 1999, year field must be within 2010. Now suppose here I pass 1 is gone and another it is showing you please select a league season, please enter the title of the league. Okay. Yes. So means what are the information you are passing, it is now validated through the controller and then it shows the result. Okay. हाँ आम कंट्रोलर रे ही लिखी ना प्रोग्राम टा. ये प्रोग्राम टा कोट लिखले ऐड लिख फॉर्म में. Okay, so again you have to join.